السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء مرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم ساتھیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے۔ دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ مسلمان ہو۔ محترم ساتھی دوستو، بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ نے بے نعمتیں بے شمار اس دنیا میں نازل کیا ہے۔ صرف اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندو، تم صرف میری قدر کرو، میری عبادت کرو، میری قدر کرو، ہم تمہیں وہ چیز دیں گے کہ جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ آپ دیکھیں آج مسلمان بڑا ہی بدحالی میں زندگی گزار رہا ہے، خاص طور پہ روزی کے معاملہ میں، خاص طور پہ ڈر خوف میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ سب ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مسلمان آج ان کو دین دیکھنا پڑ رہا ہے، ایمان کی کمزوری سے۔ اگر ان کو واقعی اللہ کے قرآن پر ایمان ہو تو جو 1400 سال پہلے قرآن پہ عمل کیے تھے صحابہ، آج بھی اگر مسلمان قرآن پہ عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ بعید بات نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم پریشان ہیں روزی کے لیے یا ڈر سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ دیکھیں سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ نے بیان کیا ہے، اٹھا کر پڑھیں آپ قرآن۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان قرآن کھول کے دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اتنی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن کھول کے دیکھتا ہی نہیں، خاص طور پر برے صغیر کے مسلمان، اللہ کی قسم 1 ارب مسلمان ہیں لیکن قرآن کھول کے کبھی مسلمان نہیں دیکھتا ہے۔ جو مولوی نے کہہ دیا داڑھی ٹوپی والا، اس کو پتھر کے لکیر سمجھتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مولوی اس کے لیے نبی ہے، پتھر کا لکیر سمجھتا ہے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے بھائی، اگر کسی سے غلطی نہیں ہوگی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی کے سوا اس دھرتی پہ جو بھی اس زمین پہ ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان کے بارے میں تحقیق کیا جا سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے علم پہنچایا ہے۔ جب بھی کوئی دل میں ایسا وسوسہ ہوا تو جبرائیل آ کے بول دیے، اللہ نے بھیجے، جائیے جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دی اس بات سے۔ جیسے کافروں نے کہا، وہ قریش کے لوگوں نے کہا کہ آپ کچھ دن میری عبادت کریں ہمارے معبود کی، یا کچھ دن ہم کریں۔ کچھ تھوڑی سی لچک اللہ تعالیٰ نے نبی کے دل میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور سورہ کافرون نازل کر دیا۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم عبادت کرنے والے نہیں ہیں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اللہ نے تو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے۔ آج مسلمانوں کو اسٹیج پر یا مولویوں کو کافر نام لینے میں ان کے جو ہے پیر کانپنے لگتے ہیں۔ کیوں میرا محترم؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ ہم جو نا مرنے سے ڈرتے ہیں۔ کسی دن جو ہے نا ہم اس دنیا میں ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان ہیں، جس دن آ جائے گی تو کوئی ٹرک ٹھوکر مار دے گا، گڈھے میں گر کے مر جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ جو زندگی ہم نے گزاری اس دنیا میں، کیا جواب دیں گے کہ میرے بندے تجھے میں 70 سال 80 سال کی زندگی دیا، تو نے دنیا میں کیا کیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ مسلمان قرآن کھول کے پڑھتا نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی قسم جو ہے، قرآن جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کے گھر میں تھے لیکن کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ جو اس پر چلتا ہے، اس پر اس کے قانون پر چلتا ہے، کل اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن لڑے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے دیکھا ہے کہ یہ پڑھتا تھا، مجھے میرے اوپر عمل کرتا تھا، تو اس کو جنت میں ڈال دے، میں گواہی دیتا ہوں۔ لیکن آپ برے صغیر کے مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ 99% مسلمانوں کے خلاف جو ہے قرآن گواہی دے گا۔ گھر میں پڑا ہوا ہے لیکن یہ مسلمان کھول کے دیکھتا نہیں ہے کہ کس لیے اللہ نے اس قرآن کو بھیجا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟
اتنی शर्म की बात है, अल्लाह की कसम. आज मुसलमान जिल्लत में क्यों जिंदगी गुजार रहा है. सूरे इब्राहिम आयत नंबर 7 में अल्लाह ने बयान किया, लइन शकरतुम लजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार बनो मेरे बंदो, हम तुमको देंगे और ज़्यादा देंगे, ज़रूर देंगे. सूरह नूह में अल्लाह ने बयान किया है कि अगर तुम अपने गुनाहों से तौबा करोगे तो हम तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देंगे. लेकिन ये मुसलमान इसको समझ में नहीं आता गुनाह क्या है और सवाब क्या है. सवाब को गुनाह समझता है, गुनाह को सवाब समझता है. मसला तो ये है ना, कैसे इंसान को मालूम चलेगा कि ये गुनाह ये सवाब है जब तक उसको इल्म नहीं होगा. क्यों हमारे बाप बता दिए कि ये नेकी है तो नेकी हो. क्यों हमारे बाप नबी थे कि बता देंगे तो नेकी हो जाएगा. नेकी वो होगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं. मेरे मोहतरम मेरे बुजुर्गों, आज मुसलमानों ने नबी के दीन छोड़ दिया. अल्लाह की कसम बासाहियत उनके सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी जलील है. मुसलमानों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिलों को सुकून मिले तो कुरान को पढ़िए और उस पर अमल कीजिए. मुर्दा दिल को, मुर्दा जिस्म को अल्लाह ताला के कुरान जो है जिंदा कर देगा. अगर आप चाहते हैं कि इज्जत की ज़िंदगी जिए तो कुरान को पढ़िए, उसके तर्जुमे के साथ पढ़िए. क्योंकि हम अरबी नहीं हैं. कुरान अल्लाह ने अरबी में नाजिल किया हुआ. जब तक हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ, तब को मालूम नहीं होगा कि हमको किधर जाना है. कहाँ इल्म है मोहतरम, कहाँ मुसलमानों के पास इल्म है. बड़े बड़े मौलवियों को देखे हैं कि टखने से नीचे कपड़ा. कौन से इस्लाम को मानने वाला. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है कि जो टखने से नीचे कपड़ा पहनता है वो जहन्नम की आग में जाएगा. चाहे वो अरब हो, चाहे अजम हो, चाहे बड़े सगीर के लोग हों. कितने लोगों को इल्म है भाई, हाफिज कुरान है लेकिन वो टखने से नीचे कपड़ा पहनता है. हमारे हाफिज कितना दर्जा है. ऐसे लगता है जैसे ये जो नबी के जो ना खानदान के है हाफिज हो गया. तो हाफिज का माना क्या भाई. हाफिज हो गया इसका मतलब जो उसको मालूम नहीं, सिर के दरवाजे जाके चौकटों पर जो है बाबा के दरवाजे पर बैठ के जो ना कहने में मुराकबा करता है. कुरान में क्या चीज़ नहीं है. सूरह फातिहा से लेकर वन्नास तक उठाइए. शिर के बारे में, तौहीद के बारे में, जिनाकार जो होगा उसको कोड़े मारे जाएंगे. जो है ना क्या नाम है, शादीशुदा अगर जिना करता है तो उसको संसार किया जाएगा. कत्ल का बदला कत्ल है. क्या ये मुसलमान हो कुरान जो हैं दुनिया के ये कुरान पढ़ते तो कुरान नाफिज करते ना. कुरान तो पढ़े नहीं है, बिल्कुल यहूदियों का औलाद जैसा दिखते हैं. तो वो क्या कुरान नाफिज करेंगे मेरे मोहतरम, वो क्या कुरान नाफिज करेंगे. मेरे मोहतरम, अल्लाह का कसम इस दिल में दर्द होता है कि मुसलमान को अल्लाह ने मुल्क दिया है, सब कुछ दिया, उसके बावजूद जूते खा रहे हैं. ये अक्लमंदी की बात है कि मेरे पास बंदूक हो, कोई आकर गोली मार जाए. अक्लमंदी है. आज मुसलमान का ये हाल है, सब कुछ है उसके बावजूद भी जूते खा रहे हैं. सोशल मीडिया पर जो भी लोग हैं वो देखें कि मुसलमानों की जो इज्जत अल्लाह ताला ने छीन लिया है. इसलिए छीन लिया है कि अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद, कलमा पढ़ने के बावजूद भी गद्दारी करते हैं. गैर मुस्लिम कलमा नहीं पढ़ा है तो गद्दार है ही है, लेकिन हम कलमा पढ़ने के बावजूद भी गद्दार हैं. कोई भी हमारा अमल इल्म के मुताबिक नहीं है. शादी देख लें, बच्चा पैदा होने देख लें, मर जो इस दुनिया से कुछ कर गया आप देख लें. बरस अगर में कोई कह दे कि हम सुन्नत के मुताबिक, हमको सुन्नत के मुताबिक जो है ना वो मरीज को भी, वो क्या नाम है, मैयत को भी नहीं दफनाते हैं, ये भी मालूम नहीं उनको. इतना जो है जहालत हमारे मुल्कों में है. 1 करोड़ आबादी है, मैं समझता हूँ कि 95 करोड़ लोग जो है ना दीन से दूर है. इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. मेरे मोहतरम, कब तक हमें जूते खाते रहेंगे, मार खाते रहेंगे. मेरे मोहतरम, आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमको इज्जत दे. इस कुरान को जो अल्लाह का पैगाम आया है इसको तर्जुमे के साथ पढ़िए. एक दफ़ा पढ़ लीजिए सूरह फातिहा से उन्नास तक. अल्लाह की कसम आपके सामने कोई बादशाह भी आएगा आप नहीं डर सकते. अल्लाह ताला सारे दिलों से डर निकाल देगा, मौत का खौफ ही निकाल देगा. ये वो कलाम है. लेकिन अफसोस की बात है कि खोल के देखते नहीं, कितने हमारे बाप दादा परदादा चले गए. वो ऐसा ही जो है ना कुरान रखा हुआ है. मौलवियों ने अजीब अजीब मामला कर दिया है कि जब इंसान मरने लगता है तो सूरह यासीन पढ़ो, मर गया तो चौथे दिन ख़त्म पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह. ऐसे लगता है कि उसका बाप, उसका दादा नबी है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं था. हमने अपना दीन बना रखा है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें उनको छोड़ दिया. जा हमने काफिरों को तो तेरे ऊपर मुसलत कर दिया, जा जूते का. तब तक तू जूता खाएगा जब तक हमारे दीन की तरफ नहीं पलटेगा, उस दिन की तरफ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने दिया है. आप तहकीक तो करें कि बच्चा पैदा होता है तो नबी का तरीका क्या है, नमाज में नबी का तरीका क्या है, जो फौत हो गया उसमें नबी का तरीका क्या है, शादी करें उसमें नबी का तरीका. कोई तहकीक करता है मुसलमान?
शर्म को भी शर्म आ जाए, बड़े शरीर के मुसलमान जो ये काम करता, शर्म को भी शर्म आ जाए। इसलिए मेरा मोहतरम, बड़ा अफसोस के साथ, दिल चाहता नहीं है कि आदमी वीडियो बनाए, लेकिन इसलिए बनाता है कि मुसलमानों बहुत देर हो चुकी है, कितने हमारे बाप दादे चले गए इस दुनिया से। आप अपने ऊपर रहम कीजिए, अपने बाल बच्चों पर रहम कीजिए और कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए, सारे मसले का हल उसमें मौजूद है। बड़े सगीर में आज मुसलमान इतना परेशान है कि जिसका कोई जो इंतहा नहीं है, कि अल्लाह ने सब उसमें किया हुआ है। अल्लाह ने कहा है सूरह जुमा में कि मुसलमानों तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जुमा का नमाज पढ़ो और दुनिया में फैल जाओ। जहाँ तुम्हारे मुकद्दर में हमने रोज़ी लिखा वो मिल कर रहेगा, लेकिन दौड़ने के बाद, फैलने के बाद तलाशने, यब तगूना, तुम तलाश करो। इसलिए मेरा मोहतरम, कुरान और नबी के फरमान को देखिए कि उसमें क्या है, उसी के मुताबिक अमल कीजिए। अल्लाह की कसम नहीं तो हम फ्री में चले जाएंगे और कल क़यामत दिन आरजू करेंगे कि अल्लाह ताला हमको दुनिया में दोबारा भेज दे कि हम अच्छा काम कर लें। अल्लाह कहेगा नहीं, बिलफर्ज हम भेज भी दे तेरे को तो तू वही काम करेगा जो दुनिया में जो करके आया है। अल्लाह जानता है ना अपने बंदों के बारे में, उसने दुनिया बनाया, उसने पैदा उसके किया, समझ रहे हैं। सूरह निसा है नंबर 56 उठा के देखिए, अल्लाह ने कहा है कि एक चमड़ी जल जाएगा तुम्हारा, हम दूसरी चमड़ी बदल देंगे ताकि तुम हमेशा के लिए वो तपिश जो है महसूस करते रहो। बड़ा सख्त मामला है मेरे मोहतरम। इन्न बतश रब्बिक लशदीद, सूरह बुरूज में अल्लाह ने बयान किया कि बेशक तेरे रब की पकड़ सकते, इस पकड़ से डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला के पकड़ आ जाए और हम जो है ना इस दुनिया से चले जाएं बेगर कुछ किए हुए। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मजलूमों को अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ें। तौफीक देगा, बेशक देगा। ये भी कहना जो है सही नहीं है कि अल्लाह तौफीक दे। अरे कुरान तुम्हारे घर में खोल कर पढ़ोगे तब ना। मैं क्यों कह रहा हूँ, कहीं भी सोचेगा भाई कि को बहुत बड़ा का अल्लामा बनता है, ऐसा कह रहा है। नहीं, सूरह राद आयत नंबर 11 में अल्लाह ने बयान किया है कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत को खुद बदलना नहीं चाहती है। पढ़ के देखें आप कुरान। मैं अपनी मर्जी से क्यों बोलूँगा भाई, मेरे ऊपर जिब्राइल आते हैं कि मैं अपनी मर्जी से बोलूँगा। हर बात की दलील जो कुरान में मौजूद है मेरे मोहतरम। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत को खुद बदलना नहीं चाहता। क्यों अल्लाह ताला आएगा, जिब्राइल को भेजेगा कि जाओ उसका हाथ में कुरान दे दो खोल के। अल्लाह ताला जिब्राइल को भेजेगा, जाओ उसको मस्जिद में लेकर चले जाओ। जिब्राइल को भेजेगा, जिब्राइल को भेज दिया, दिन मुकम्मल हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से कुछ कर गए। कुरान हदीस पढ़ा है, अगर आप उसको खोल के देखें तो तुम आपके लिए फ़ायदा होगा, नहीं खोल के देखें तो खलास जहन्नम हमारा मुकद्दर है। इस ख्याल में हम ना रहें कि हमने कलमा पढ़ा है तो अल्लाह ताला हमको जन्नत दे देगा, इस ख्याल में न रहे मुसलमानों। दलील सूरह यूसुफ आयत नंबर 106 पढ़ के देखिए, अल्लाह ताला ने क्या बयान किया है। अक्सर लोग मुसलमान होने के बावजूद भी अल्लाह के साथ शिरक करते हैं। हमारे यहाँ ख्याल मौलवी ने कर दिया कि हम कलमा पढ़ लिए हम जन्नत में चले जाएंगे। ये जो है ना, ये जो ख्वाब की महल है। एक इंसान रात में ख्वाब देखता है और देखने के बाद सोचता है कि सोने के महल में है, जब आँख खुलती है तो पता चलता है रेत में है। वैसे ही मुसलमानों का हाल है। इसलिए मुसलमानों, आपसे दर्दमाना ये गुजारिश है कि कुरान खोल के पढ़ें, वरना इस दुनिया से चले जाएंगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अल्लाह से दुआ कर अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ कहने, हक़ सुनने की तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे कि बात को सुनिए, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़िए, ताकि अल्लाह ताला इस मरे दिल को ज़िंदा कर दे और दुनिया में फैल जाइए। अल्लाह ताला ने वादा किया मुसलमानों, रईस और वज़ीर आज़म बनाने का अल्लाह ने वादा नहीं किया है। अल्लाह ने बादशाह बनाने के कि दुनिया का हम बादशाह तुमको बना देंगे, अल्लाह ने वादा किया है। दीन पर आइए मुसलमानों, अल्लाह ताला खुद ही वादा किया है। ये अल्लाह चाहता ही है कि इस दुनिया का निजाम मुसलमानों के हाथ में हो, लेकिन मुसलमान नहीं चाहता। इसलिए मेरा मोहतरम, वीडियो सुनिए, अच्छा लगे तो अमल कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्जी है। हमारा काम क्या है, अल्लाह ताला ने कहा फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को नसीहत करने वाले हैं। लस्ता अलैहिम मुसैतिर, आप किसी पर दौरा का नहीं है। हमारा काम, अल्लाह ताला सीने में दर्द दिया हुआ है, दुनिया का हाल आज देखते हैं तो दिल कर दिया कि चलो भाई बना कुछ भेज ही दें, शायद के हमारी बातों से किसी को हिदायत मिल जाए तो हमारे लिए भी आखिरत का जो नज़रिया बन जाएगा। तो अल्लाह से ही दुआ है। और इस वीडियो को सुनने के बाद जो है ना दूसरे तक पहुँचाएँ, थोड़ा सुन लें,
3 घंटा इंसान पिक्चर देख लेता है, 10-15 मिनट का वीडियो नहीं देख सकता। 3 घंटा का लोग पिक्चर रात ही रात काली कर देते हैं, 15 मिनट के वीडियो सुनने में क्या जाता है मेरा मोहतरम। इसको सुनिए, दूसरे तक पहुंचाइए, इसी में हमारी भलाई है। फिर इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे बनाने के लिए। दिल तो नहीं चाहता है मेरा मोहतरम, मुसलमानों का हालत देख के दिल नहीं चाहता है, इसलिए कि कुरान पढ़ा हुआ है, मुसलमान छूता भी नहीं है, इसलिए बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है। तो आप जो है ना तो सुनिए, दूसरों तक पहुँचाइए। जज़ाकल्लाह खैर, आपसे यही उम्मीद है। अगर नहीं करेंगे तो अपना ख़राब करेंगे, हमारा काम सिर्फ लोगों तक, आप तक बातें पहुँचा देनी है, बस इतना ही अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है। ये नहीं दिया हुक्म का बंदूक ले खड़े हो जाओ, नहीं, हमारा काम नहीं है। अरे जो सीधा होना ही नहीं चाहता है उसको हम कितना हथौड़े से मारेंगे वो सीधा नहीं होगा। अल्लाह ही उसको सीधा करे, हम क्या सीधा कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।